Now we will see how to measure any object using screw gauge. Okay, but before starting the screw gauge, we need we will do some revision on the vernier caliper. हम vernier caliper पे थोड़ा revision कर लेंगे. Okay, so last class we have seen how to measure any object using the vernier caliper. Okay, before that we will see what is the least count of the vernier caliper. The least count of the vernier caliper is 0.01 centimeter, which you can write as what, 0.1 millimeter, which you can write as what, 1/10 millimeter. Okay, these are the least counts of what, vernier caliper. तीनों एक ही बात है. Okay, now suppose I have one ball, okay, and I want to measure the diameter of that ball using the vernier caliper. So what I will do, I will place a ball between the lower jaws, okay, and I will do the measurement using the vernier caliper. As we have seen the long procedure for the measurement in the vernier caliper. For example, the reading comes out to be for the ball, the diameter of the ball. Okay, so reading हमें diameter of ball कितना आ रहा है, 5.6 millimeter. Unit क्या लिया है मैंने, millimeter. Okay. Now, if you will see, there is how many significant figures? There are the two significant figures. Okay. Now, if I want the diameter of the ball up to 3 significant figures, so for that vernier caliper fails. Vernier caliper millimeter में 3 significant figures तक का आंसर देगा ही नहीं. Okay, so यहाँ पर हमारा vernier caliper फेल हो जाता है. Okay, तब हम किस पे जंप करते हैं, स्क्रू गेज पे मेजरमेंट के लिए. Okay, so now we will see स्क्रू गेज में लीस्ट काउंट जो होता है स्क्रू गेज का वो 0.001 सेंटीमीटर होता है, which can be written as 0.01 millimeter, or you can write down 1/100 millimeter. Okay, so you will see screw gauge जब हम मिलीमीटर में मेजरमेंट करेंगे तो आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट्स तक वैल्यू देता है. ओके, जबकि वर्नियर कैलिपर जब हम मिलीमीटर में मेजर करेंगे आफ्टर डेसिमल से 1 डिजिट तक की वैल्यू देगा. ओके, तो हम ऐसा बोल सकते हैं स्क्रू गेज में लीस्ट काउंट कम करने की वजह से एरर कम हो जाता है, जिसकी वजह से एक्यूरेसी बढ़ जाती है. जैसे कि हमने लास्ट क्लास में देखा है, इफ आई वांट टू इंक्रीज द एक्यूरेसी, अगर मुझे एक्यूरेसी बढ़ानी है तो मुझे एरर कम करना पड़ेगा. एरर कम कैसे होगा, अगर मैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा. ओके, इसके लिए स्क्रू गेज में लीस्ट काउंट हम कम रखते हैं एज कंपेयर टू द वर्नियर कैलिपर. ओके, मीन्स स्क्रू गेज इज सेड टू बी व्हाट, द मोर सेंसिटिव डिवाइस एज कंपेयर टू द वर्नियर कैलिपर. क्यों, क्योंकि स्क्रू गेज में लीस्ट काउंट कम होने की वजह से एरर कम होगा, जिसकी वजह से एक्यूरेसी उसकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. ओके, सो अभी अगर मैं स्क्रू गेज की मदद से मुझे डायमीटर ऑफ द बॉल कैलकुलेट करना है तो शायद मे बी द डायमीटर ऑफ द बॉल कम्स आउट टू बी 5.64 मिलीमीटर. सी, स्क्रू गेज ने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर दे दिया, जबकि वर्नियर कैलिपर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर नहीं दे पाएगा. वो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स में देगा आंसर, ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स. सो दैट्स व्हाई for high accuracy we prefer screw gauge as compared to what, the vernier caliper. Okay, let's see the construction of the screw gauge. Now before understanding the construction of the screw gauge, first we will see why the device named as what, the screw gauge. Okay, इस device का name screw gauge क्यों रखा. Screw gauge, as we know what you mean by screw. Okay, तो ये screw है हमारा. Okay, this screw can move in the 2 directions, anti-clockwise direction or clockwise direction. Okay, or gauge, what do you mean by gauge? Gauge means a device which measures a physical quantity and it displays it. Gauge का मतलब क्या होता है, एक ऐसी डिवाइस जो किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करेगा और उसको डिस्प्ले करेगा. ओके, तो यहाँ पर गेज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एक ऐसा डिवाइस है जो लेंथ को मेजर करेगा और उसको डिस्प्ले करेगा. That's why this device is named as what, the screw gauge. Now we will see the construction of the screw gauge. Screw gauge consists of anvil, which is known as what, the fixed jaw. जैसे कि यहाँ पर वर्नियर कैलिपर में भी है, ये हमारे फिक्स जॉस थे. स्क्रू गेज में भी फिक्स जॉ होता है जिसको हम एनविल कहते हैं. नेक्स्ट इज स्पिंडल, विच इज व्हाट, मूवेबल जॉ, जो मूव करेगा.
अंदर बाहर मूव करेगा, वो मैं आपको मूवमेंट दिखाऊंगा थोड़ी देर में कैसे मूव करेगा। ओके, नेक्स्ट इट कंसिस्ट ऑफ स्लीव। स्लीव यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होती है जिसके ऊपर रीडिंग्स लिखी रहती है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज थिम्बल। थिम्बल भी एक सिलेंडर होता है लेकिन स्लीव से थोड़ा बड़ा होता है। ओके, और अंदर से हॉलो होता है। अंदर से हॉलो होता है जिसके वजह से ये जो स्लीव है ये इसके अंदर रहता है, और जैसे जैसे ये थिम्बल आप मूव करोगे, सी थिम्बल इज नथिंग बट व्हाट द स्क्रू। थिम्बल कैन बी मूव इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, उस हिसाब से ये अंदर बाहर जाता है। आप देख रहे होगे कि यहाँ से रीडिंग्स बाहर निकलती है। ओके, एक्चुअली रीडिंग्स वहीं पे, ये जो थिम्बल है ये पीछे जा रहा है तो यहाँ पर रीडिंग डिस्प्ले होती जाएगी। ओके, उसके बाद आता है हमारा द लास्ट पार्ट, रैचेट। ओके, तो ये सारे स्क्रू गेज के कंपोनेंट्स है, यू कैन से। ओके, ये सारे कंपोनेंट्स कैसे कैसे फंक्शन करते हैं, वी विल सी दैट। ओके, सबसे पहले यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो स्पिंडल है वो किस डायरेक्शन में और कैसे मूव करता है। ओके, सपोज ये हमारा थिम्बल है, दिस इज माई थिम्बल। ओके, फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं यहाँ से ऐसे देख रहा हूँ, सी अगर मैं यहाँ से इसको देखूंगा तो ये थिम्बल को अगर मैंने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया, सी इट इज मूविंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, अगर ये थिम्बल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा तो ये स्पिंडल मूव करेगा। नाउ द क्वेश्चन अराइज, स्पिंडल मूव तो करेगा लेकिन बाहर आएगा या अंदर जाएगा, वो हमें चेक करना है। ओके, तो यहां पर जब मैंने इस थिम्बल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना चालू कर दिया लाइक दिस। ओके, सो स्पिंडल की डायरेक्शन पता करने के लिए हम हमारे राइट हैंड की मदद लेंगे। ओके, राइट हैंड की जो फिंगर्स है वो थिम्बल की डायरेक्शन में रहेगी, मतलब थिम्बल क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ओके, सी हमारा थिम्बल जो था मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये कौन सी डायरेक्शन में घूम रहा था, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा था, लाइक दिस। ओके, तो मैंने अपनी फिंगर्स को उस डायरेक्शन में रख दी। ओके, और जो मेरा थंब है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्पिंडल की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, जब आप इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाओगे तो ये स्पिंडल होगा वो क्या होगा, बाहर आते जाएगा। ओके, मीन्स फॉर द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये स्पिंडल किस डायरेक्शन में आएगा, फिक्स जॉ की तरफ आना चालू कर देगा। ओके, अब यही चीज अगर मतलब मान लो थिम्बल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम घुमा रहे होते लाइक दिस, फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो स्पिंडल की डायरेक्शन पता करने के लिए मैं अपने राइट हैंड की मदद लूंगा, और यहां पर सी कर्ल्ड फिंगर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ थिम्बल। ओके, सो जो थंब है वो किसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा, स्पिंडल। तो अभी यहां पर स्पिंडल कौन से डायरेक्शन में जाएगा, इट विल मूव अवे फ्रॉम द एनविल, एनविल से क्या करेगा, दूर जाएगा। ओके, तो थिम्बल का यह काम होगा। थिम्बल के ऊपर लगी होती है सर्कुलर स्केल जो रीडिंग लेने में मदद करेगी, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे रीडिंग लेते हैं। ओके, यहाँ पर स्लीव पे मेन स्केल होती है जिसके ऊपर दिस लाइन इज सेड टू बी व्हाट द रेफरेंस लाइन, ये हमारी कौन सी लाइन होती है, रेफरेंस लाइन होती है। लास्ट में होता है रैचेट। रैचेट का काम होगा कि थिम्बल को आप लास्ट सी जैसे जैसे थिम्बल बाहर निकलेगा, ओके, रैचेट को टच हो जाएगा, मतलब अब लास्ट मोमेंट दैट इज द लास्ट पॉइंट ऑफ द थिम्बल, इसके आगे थिम्बल नहीं जा सकता। ओके, इससे ज्यादा मतलब थिम्बल खुल नहीं सकता। सो वो लास्ट इंडिकेटर होता है कि बस आप थिम्बल को यहीं तक खोल सकते हो। Okay, so this is what the construction of the screw gauge. Now we will see how to measure the reading of any object using the screw gauge. Okay, now we will see how to measure the least count of screw gauge. Okay, हम screw gauge की मेजरमेंट से पहले लीस्ट काउंट निकालना सीखेंगे कि स्क्रू गेज की लीस्ट काउंट कैसे निकालेंगे। बिफोर गोइंग फॉर द लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज, फर्स्ट हम थोड़ा सा सर्कुलर स्केल को देखते हैं। सी सर्कुलर स्केल, ये जो थिम्बल है आपका, ओके, उसके थिम्बल आपकी ये शेप की होगी सर्कल वाली, तो ये जो सर्कल की शेप होगी इसके ऊपर कुछ इस तरीके से रीडिंग्स होती है। जीरो यहाँ से चालू होगा तो जीरो से लेके ये सारी डिविजन्स होगी। ओके, मान लो ये जो स्क्रू गेज हम यूज़ कर रहे हैं इसमें 100 डिविजन्स है, एज यू कैन सी 0 1 2 3 4 5 6 7, बाद में पीछे नंबर्स है और उसके बाद फिर से नंबर्स कंटिन्यू हुए 95 96 97 98 99 एंड फाइनली 100। सो ये जो हम स्क्रू यूज़ कर रहे हैं 100 डिविजन्स की स्क्रू यूज़ कर रहे हैं। ओके, सो नाउ सबसे पहले
जब मैंने स्क्रू को घुमाना चालू किया इन विच डायरेक्शन, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन में घुमा रहे हैं हम? एंटी क्लॉकवाइज। तो हमें पता है जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम स्क्रू को घुमाएंगे तो स्पिंडल कहाँ पर आएगा? एनविल की तरफ आएगा, और एक मूवमेंट ऐसा हो जाएगा कि स्पिंडल और एनविल एक दूसरे के साथ आके ऐसे चिपक जाएंगे, दे विल अटैच्ड, ओके, लाइक दिस। एनविल एंड स्पिंडल एक दूसरे के साथ आके अटैच्ड हो गए, ओके। नाउ व्हेन एनविल एंड स्पिंडल is attached with each other, at that time when you see the thimble and main scale together, you will find out, see this is the main scale, ये हमारा क्या है? मेन स्केल है। ये जो डॉटेड लाइंस मैंने यहाँ पर बनाए हैं, इसका मतलब क्या हुआ? ये डॉटेड लाइंस थिम्बल के पीछे चले गए। जब आप थिम्बल्स को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमाओगे तो थिम्बल आपका आगे आते जाएगा, और ये सारे जो मेजरमेंट्स है इनको क्या करेगा? कवर करते जाएगा। सो ये जो डॉटेड लाइंस जो मैंने रिप्रेजेंट किया, ये थिम्बल के अंदर चले गए, जो आप देख नहीं पाओगे, ओके। तो हमें क्या दिख रहा है? हमें सिर्फ ये बाहर वाली लाइन दिख रहा है, जिधर तक अभी तक थिम्बल पहुंचा नहीं है और पहुंचेगा भी नहीं, ओके। थिम्बल कहाँ तक आएगा? 0 तक ही आ सकता है, ओके, अगर इंस्ट्रूमेंट में 0 एरर नहीं है तो, ओके। तो अभी हम लोग 0 एरर में आपको बताऊंगा डिटेल में कि क्या होता है 0 एरर, ओके। बट बिफोर दैट ऐसा हम समझ के चल रहे कि इस इंस्ट्रूमेंट में 0 एरर नहीं है। तो जब इस इंस्ट्रूमेंट में 0 एरर नहीं है तो आप क्या नोटिस करोगे कि यहाँ पर स्लीव में जो मेन स्केल है उसका 0 डिवीजन, ओके, 0 डिवीजन देख रहे हो आप? इसी लाइन पे आ गया, और यू कैन से द रेफरेंस लाइन इज एग्जैक्टली कोइंसाइडिंग विद 0 डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल। इस लाइन को हमने रेफरेंस लाइन कहा है। दिस लाइन इज नोन एज व्हाट? द रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन 0 डिवीजन के साथ एग्जैक्टली कोइंसाइड करेगा, ओके। और अभी हम क्या करेंगे? अभी हम थिम्बल को कौन सी डायरेक्शन में घुमाएंगे? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे। मैंने थिम्बल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना चालू किया। सो जब आपका थिम्बल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, सी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो जब आपका थिम्बल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना चालू होगा, ओके, तो स्पिंडल कहाँ पर आएगा? एनविल से दूर जाएगा, ओके। और हम थिम्बल को सिर्फ एक ही रेवोल्यूशन में घुमा रहे। सो सी हियर, दिस इज अ डायग्राम। आफ्टर 1 कंप्लीट रोटेशन ऑफ द थिम्बल की क्या हो गई? एक रोटेशन खत्म हो गई, ओके। मतलब 0 डिवीजन पे था, मतलब एज यू कैन सी दिस इज अ व्हाइट बोर्ड मार्कर, देख रहे हो आप? इसको मैंने एक कंप्लीट रोटेशन बोलोगे तो ये व्हाइट बोर्ड मार्कर आपके सामने ही आ जाएगा, ओके। तो जब हमने थिम्बल की एक रोटेशन घुमाई तो थिम्बल ने, तो ये जो हमारा मेन स्केल है ये कुछ इस तरीके से रीडिंग दे रहा है। एज यू कैन सी थिम्बल क्या हुआ? पीछे चला गया। वी नो दैट अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाओगे तो थिम्बल और स्पिंडल पीछे जाएगा, ओके। स्पिंडल भी देखो पीछे आ गया, और एनविल और स्पिंडल के बीच में कुछ गैप बन गई। यही जो गैप है ये आपकी यही रीडिंग होगी जो यहाँ पर से ले गए हम, ओके, क्लियर, फाइन। तो थिम्बल को हमने कितनी रेवोल्यूशन घुमाई? एज यू कैन सी वी रोटेट द थिम्बल बाय 1 okay class, now we will see how to measure the least count of the screw gauge। हम least count measure करेंगे अभी screw gauge की, okay। but before going to the least count of the screw gauge, पहले हम थोड़ा सा circular scale के बारे में समझ लेते हैं screw gauge की, okay। as we have seen the thimble is just like a screw type, स्क्रू ही होता है वो, ओके। तो ये आपका स्क्रू टाइप कुछ ऐसे ही होगा, मतलब सर्कुलर टाइप में ही होगा, और इसके ऊपर आपकी डिविजन्स होगी, ओके। 0 डिवीजन देख रहे हो आप यहाँ पर, 0 डिवीजन, ओके। यहाँ से फिर डिविजन्स चालू होती है 0 1 2, एज यू कैन सी 0 1 2 3 4 5 6। सो 0 से लेके यहाँ तक ऐसा हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि ये 100 डिविजन है इसके ऊपर सर्कुलर स्केल की, ओके। तो आप देख रहे हो 0 1 2 3 4, बाद में ये पूरा कवर होके पीछे से घूम के 95 96 97 98 99 एंड 100। तो इस तरीके से डिविजन्स होती है सर्कुलर स्केल पे, ओके। सो अभी हम क्या करेंगे? लीस्ट काउंट मेजर करने के लिए सबसे पहले आप थिम्बल को घुमाओगे इन विच डायरेक्शन? इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जब आपका थिम्बल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा तो ये जो स्पिंडल होगा, सी
थिम्बल आपकी कौन से डायरेक्शन में घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है, तो आपका स्पिंडल मेरी तरफ आएगा, मतलब आप बोल सकते हो एनविल की तरफ आएगा। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब स्पिंडल और एनविल क्या हो जाएगा, जॉइंट हो जाएगा लाइक दिस। तो जब आपका एनविल और स्पिंडल जॉइंट हो जाएगा तो आपको मेन स्केल पे कुछ इस तरीके से रीडिंग देखने को मिलेगी। एज यू सी द रेफरेंस लाइन, दिस इज द रेफरेंस लाइन, ओके। आपका मेन स्केल जीरो, सी आपका जो मेन स्केल का जो जीरो है वो क्या होगा, थिम्बल की बाउंड्री पे आ जाएगा, जो थिम्बल का बाउंड्री है ना उसके ऊपर आ गया। सी जो मेन स्केल का जीरो है वो आपकी थिम्बल की बाउंड्री पे आ गया, ओके। और आप जब रेफरेंस लाइन को देखोगे, सी ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, इस लाइन को हमने क्या कहा है, रेफरेंस लाइन का है। आप जब रेफरेंस लाइन को देखोगे तो आपकी जो रेफरेंस लाइन है वो सर्कुलर स्केल के जीरो के साथ एग्जैक्टली कोइंसाइड है, ओके। ये कभी होगा अगर स्क्रू गेज इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर नहीं है तो। मैं आपको जीरो एरर के बारे में बताऊंगा थोड़ी देर में, ओके। तो यहाँ पर जब हम देख रहे हैं रेफरेंस लाइन क्या हो गया, सर्कुलर स्केल के जीरो के साथ क्या हो गया, कोइंसाइड हो गया, ओके। सो नाउ, और हाँ ये जो डॉटेड लाइंस आप देख रहे हो, यहाँ पर देखो डॉटेड नहीं था, यहाँ पर कंटिन्यूस था। कंटिन्यूस लाइन मतलब आप इस लाइन को अपनी आंखों से देख सकते हो यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर आप नहीं देख पाओगे इस रीडिंग्स को। क्यों नहीं देख पाएंगे, क्योंकि थिम्बल क्या करेगा, जब ये आप इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो ये अंदर की तरफ आएगा और इन रीडिंग्स को कवर करेगा और ये रीडिंग्स थिम्बल के अंदर चली जाएगी। इसके लिए मैंने यहाँ पर डॉटेड लाइन्स रिप्रेजेंट किया है। डॉटेड लाइन मतलब आप रीडिंग्स, इन रीडिंग्स को नहीं देख पाओगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने कंटिन्यूस लाइन बनाया, मतलब हम इन रीडिंग्स को देख पा रहे हैं बट इन रीडिंग्स को नहीं देख पा रहे क्योंकि ये थिम्बल के अंदर है, ओके। अभी यहाँ तक हमने समझ लिया। अब हम क्या करेंगे, जो थिम्बल है उसको एक रोटेशन से घुमाएंगे, लाइक सी व्हाट यू मीन बाय वन रोटेशन। आप यहाँ पर आपको दिख रहा होगा व्हाइट बोर्ड मार्कर पेन, ओके। अब ये व्हाइट बोर्ड मार्कर पेन आपके सामने है। एक रोटेशन मतलब मैंने इसको घुमा के फिर से व्हाइट बोर्ड मार्कर वाला जो सिंबल था, जो वर्ड्स थे, वो आपके सामने ला दिया। इसको हम बोलते हैं वन रोटेशन। मतलब कैसे था, इस केस में जीरो है यहाँ पर, तो इसको थिम्बल को मैंने घुमाया और वापस से जीरो रेफरेंस लाइन के ऊपर लेके आ जाऊंगा। सी वापस से जीरो हमारा क्या हो गया, सी जीरो पहले रेफरेंस लाइन पे था, इसको एक रोटेशन से घुमाया और ये जीरो को मैंने वापस से रेफरेंस लाइन के ऊपर लेके आ गया। तो इसको हम बोलेंगे कि एक रोटेशन खत्म हो चुकी है। एज यू कैन सी, अगर मैंने एक रोटेशन खत्म कर दी, ओके। रोटेशन मतलब अभी कैसे रोटेशन खत्म की, मतलब हमने थिम्बल को कैसे घुमाया था, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया था। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की वजह से थिम्बल क्या होगा, उस तरफ जाएगा, और यू कैन से मेरे लेफ्ट की तरफ गया थिम्बल, ओके। सो जब थिम्बल लेफ्ट की तरफ जाएगा तो स्पिंडल भी लेफ्ट की तरफ जाएगा और एनविल और स्पिंडल के बीच में कुछ गैप बन जाएगी, और ये गैप का जो लेंथ होगा वही लेंथ हमें स्क्रू गेज बताता है, ओके। एज यू कैन सी, थिम्बल जैसे पीछे गया तो थिम्बल ने, एज आई कैन से, थिम्बल ने कुछ डिस्टेंस कवर किया मेन स्केल पे। सी ये मेन स्केल का क्या था, जीरो डिवीजन था, और अभी मेन स्केल अपने फर्स्ट डिवीजन पे आ गया, मतलब थिम्बल मेन स्केल के फर्स्ट डिवीजन पे आ गया। तो कहना इसे, इस थिम्बल ने मेन स्केल पे कुछ वन डिवीजन कवर किया, ओके। तो इसी वन डिवीजन को हम क्या बोलेंगे, पिच बोलते हैं। इसी वन डिवीजन को हम क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। हम पिच की डेफिनेशन देखेंगे। सो लेट्स डिफाइन द पिच फर्स्ट। द डिस्टेंस covered by thimble on main scale when it completes one rotation, when it completes one rotation, okay। pitch क्या होता है, the distance covered by the thimble on main scale when it completes one rotation, ओके। तो वन रोटेशंस में कितनी डिवीजन्स थे टोटल, हमें पता सर्कुलर स्केल में कितनी डिवीजन्स थे, 100 डिवीजन्स। सर्कुलर स्केल में कितनी डिवीजन्स थी, 100 डिवीजन्स। जब 100 डिवीजन्स हमने एक रोटेशन दिया, किसको, थिम्बल को दिया, तो थिम्बल के एक रोटेशन में कितनी डिवीजन्स थे, 100 डिवीजन्स कवर हुई। तो जब 100 डिवीजन्स था उस वक्त मेन स्केल में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, मेन स्केल, एज आई विल से दैट मेन स्केल इज इन माई मिलीमीटर्स। ये जो मेन स्केल है आपका मिलीमीटर्स में, ओके।
तो जब एक रोटेशन खत्म हुआ तो मेन स्केल में 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस कवर हुआ. सी दिस इज 0, दिस इज 1 2 3 4 5. ओके, तो जब थिम्बल ने एक रोटेशन मारा तो मेन स्केल में 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस कवर किया. सो 100 डिवीजन में 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस कवर हुआ. तो मुझे पता करना है कि 1 डिवीजन में कितना मिलीमीटर होता. ओके, सो आई विल टेक द यूनिटरी मेथड. I will say 100x is equals to 1. 100x is equals to 1 into 1. So therefore I will say x is equals to what? 1 upon 100 millimeter. Means 1 division में कितना millimeter होगा? 1 upon 100. 1 division is equals to what? 1 upon 100 millimeter. 1 division where? 1 division on circular scale. अगर circular scale 1 division से displaced होगा, ओके, सर्कुलर स्केल 1 डिवीजन से डिस्प्लेस होना मतलब मैं आपको बता देता हूँ व्हाट यू मीन बाय दैट. अभी यहाँ पर 0 है ना, ये 0 मतलब सर्कुलर स्केल को मैं क्या करूँगा, आई विल रोटेट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो 0 नीचे आ जाएगा और ये 1 रेफरेंस लाइन के साथ कोइंसाइड हो जाएगा. इसका मतलब क्या हुआ, सर्कुलर स्केल आपका 1 रोटेशन से डिस्प्लेस हुआ. तो जब सर्कुलर स्केल 1 डिवीजन से डिस्प्लेस्ड हो गया, तो जब सर्कुलर स्केल 1 डिवीजन से डिस्प्लेस्ड होगा तो उस वक्त एनविल और स्पिंडल के बीच में जो गैप आएगी वो कितने की होगी? 1 अपॉन 100 मिलीमीटर की गैप होगी. एज वी नो दैट ना, सी 0 जब सर्कुलर स्केल का 0 मेन स्केल के साथ 0 के साथ है और जब मैंने इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया तो ये जो 1 है अब ये रेफरेंस लाइन पे आ जाएगा. तो जब 1 रेफरेंस लाइन पे आ गया तो एज यू कैन सी, मैं यहाँ पर डायग्राम बना देता हूँ. ये इनिशियली 0 था मेन स्केल का. ओके, बाद में आपका स्पिंडल यहाँ पर कहीं पे आ गया. ओके, मतलब ये 0, उसके बाद ये 1, सॉरी दिस इज योर 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड सो ऑन. ओके, तो जब यहाँ पर 0 से 1 जब वापस 1 रेफरेंस लाइन के साथ कोइंसाइड होगा तो सी एज यू कैन सी इतनी गैप बन चुकी होगी. किसके बीच में? थिम्बल के बाउंड्री और 0 के बीच में. सी दिस इज द थिम्बल का, दिस इज सेड टू बी द बाउंड्री ऑफ द थिम्बल. थिम्बल की बाउंड्री और 0 के बीच में जो गैप बन चुकी होगी वो कितने की बन चुकी होगी? 1/100 की. और हम बोल सकते हैं यही गैप एनविल और स्पिंडल के बीच में बन चुकी होगी. तो मतलब एनविल और स्पिंडल लीस्ट टू लीस्ट कितना डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं? 1/100 मिलीमीटर. तो यही हमारा क्या होता है? स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट होता है. आई विल से दिस इज व्हाट द लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज. ओके, सो अभी हम एक लीस्ट काउंट कैलकुलेट करने का डायरेक्ट फॉर्मूला बनाते हैं. ओके, सी लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू, आई विल से पिच अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल. ओके, तो इस केस में हमारा पिच कितना था? ओके, इस केस में हमारा पिच था 1 मिलीमीटर, है ना, क्योंकि एक रोटेशन घुमाने पे मेन स्केल पे थिम्बल 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस कवर कर चुका है. व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल? द टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल इज 100. सो दिस इज माई द लीस्ट काउंट, दैट इज व्हाट 1 अपॉन 100 मिलीमीटर, लाइक दिस. ओके, तो लीस्ट काउंट की डेफिनेशन क्या बन जाएगी? लीस्ट काउंट डेफिनेशन फॉर द स्क्रू गेज इज नथिंग बट व्हाट? पिच अपॉन number of division on the circular scale. So this is a direct way of calculating, or you can calculate in this way also. Now we will see how to measure any object using screw gauge. Okay, so before starting the measurement of any object using the screw gauge, I will give you the definition, formula, distance between spindle and anvil is equals to main scale reading plus least count into vernier scale reading. ओके, तो हमें ये समझना है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम कैसे मेज़र कर सकते हैं स्क्रू गेज की मदद से. तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे टू मेज़र एनी ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ स्क्रू गेज. ओके, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था मुझे एक बॉल की डायमीटर मेज़र करनी है, तो वर्नियर कैलिपर से हमने उसको मेज़र कराया था
इन मिलीमीटर्स, अगर मैं मिलीमीटर्स में मेजर करूंगा तो वर्नियर कैलिपर मुझे टिल 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आंसर देता है. ओके यही चीज अभी हम स्क्रू गेज के साथ देखते हैं कि स्क्रू गेज हमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आंसर देगा. ओके तो सबसे पहले जिस बॉल को मुझे मेजर करना है उस बॉल को मैं क्या करूंगा, एनविल और स्पिंडल के बीच में रख दूंगा. एज यू कैन सी यहाँ पर मैंने एक बॉल रख दी है एनविल और स्पिंडल के बीच में, लाइक दिस. ओके और मैंने यहाँ पर थिम्बल्स को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा के इस बॉल को एकदम टाइटली क्लैम्प करवा दिया एनविल और स्पिंडल के बीच में. सो आप देखोगे यहाँ पर कुछ इस तरीके से रीडिंग आ रही है. ओके थिम्बल की पोजीशन क्या है इस वक्त, मेन स्केल पे 5 मिलीमीटर के बाद है, ये मिलीमीटर्स में आपका 5 मिलीमीटर के बाद है. और अगर आप देखोगे तो सर्कुलर स्केल पे 65 डिवीज़न कोइंसाइड हो रही है रेफरेंस लाइन के साथ. ओके तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि मैं इस बॉल की डायमीटर कैसे मेजर कर सकता हूँ. सी आई कैन से द डायमीटर ऑफ द बॉल, सी दिस इज द डायमीटर ऑफ द बॉल, राइट. द डायमीटर ऑफ द बॉल इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन स्पिंडल एंड एनविल. ऑब्वियसली सी स्पिंडल और एनविल के बीच का डिस्टेंस ही डायमीटर ऑफ बॉल है. ओके तो हम ये फॉर्मूले की मदद से डायमीटर ऑफ द बॉल कैलकुलेट करेंगे. सो द डिस्टेंस बिटवीन स्पिंडल एंड एनविल इज व्हाट, द डायमीटर ऑफ द बॉल. सो आई विल राइट डाउन दिस इज नथिंग बट व्हाट, द डायमीटर ऑफ द बॉल. व्हाट इज मेन स्केल रीडिंग. अब मेन स्केल रीडिंग कैसे कैलकुलेट होगी, इसमें थिम्बल के पहले जो भी थिम्बल से सबसे क्लोजेस्ट रीडिंग होगी, जैसे कि इस केस में थिम्बल से सबसे नजदीक वाली रीडिंग क्या है 5, तो वो आपकी क्या बन जाएगी, मेन स्केल रीडिंग. तो मैंने यहां पर क्या लिख दिया, द मेन स्केल रीडिंग इज व्हाट 5. रिमेंबर 5 इज इन मिलीमीटर. ओके नेक्स्ट, अभी हमें पता है लीस्ट काउंट कितनी है, प्लस लीस्ट काउंट इज व्हाट 1/100. सॉरी दिस इज नॉट VSR, सॉरी दिस इज CSR, सर्कुलर स्केल रीडिंग. ओके लीस्ट काउंट कितना है 1/100. नाउ वी विल सी व्हाट इज सर्कुलर स्केल रीडिंग. सर्कुलर स्केल रीडिंग इज व्हाट 65. सो आई विल multiply with 65. Now I will solve this. So 5 plus 65 divided by 100 comes out to be 5 plus 0.65. So it is said to be what 5.65 millimeter. तो इस तरीके से हम स्क्रू गेज की मदद से डायमीटर ऑफ बॉल कैलकुलेट कर चुके हैं. एज यू कैन सी जब हम मिलीमीटर में मेजर करेंगे तो डायमीटर ऑफ द बॉल comes out to be 3 significant figures. While in case of vernier caliper, diameter of the ball ऐसे हमें आया था, that is 5.6 millimeter diameter of the ball using what, the vernier caliper. Okay, so vernier caliper ने रीडिंग मुझे till 2 significant figures तक दिया था. स्क्रू गेज ने मुझे रीडिंग्स कितने दिया, 3 significant figures तक दिया. Okay, so I will say that screw gauge is more accurate than the vernier caliper. Let's try to understand zero error. For zero error I have made 3 diagrams. First we will see the bottom one. I have a pencil. Okay, I want to measure the length of that pencil. So what I had done, I kept one end of the pencil which is coinciding with the 0th mark of the scale, and the other end is showing me the reading of the pencil, what will be the length of the pencil. So I find out that the length of the pencil is 4 centimeter. This scale is in centimeter, so I find out the length of the pencil comes out to be what, the 4 centimeter. This is the actual length of the pencil. Okay, so now we will come back to the first diagram and we will try to understand what is the error in this case. Okay, suppose I have a scale which is broke down from the starting part. Okay, स्केल का स्टार्टिंग पार्ट टूट गया है जिसकी वजह से जो वहाँ पर ज़ीरो था वो अभी नहीं है. ओके तो बट मुझे पेंसिल की लेंथ मेज़र करनी है, तो मैंने कहाँ से मेज़र किया, आई स्टार्ट मेज़रिंग फ्रॉम 1 सेंटीमीटर. सो पेंसिल की लेंथ यहाँ पर जो मुझे शो कर रही है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर. सो आई विल से दैट लेंथ measured by the pencil is 5 centimeter in this case. Okay, so I will say this is what the measured length, this is what the measured length. Actual length of the pencil is how much, the actual length of the pencil is what, the 4 centimeter. So is there error, yes, is there error. So what is the formula for the error,
वी नो द फॉर्मूला फॉर द एरर इज व्हाट, मेजर्ड लेंथ minus actual length. So what is measured length? The measured length is 5 centimeter. What is actual length? It's 4 centimeters. So what the error? So error in this case is what, 1 centimeter error. So यहाँ पर error हमें कितना आया, 1 centimeter. The answer is in plus. So I will say this is what the positive zero error. इसी को हम क्या कहते हैं, positive zero error. Okay? जीरो एरर इसके लिए बोलते हैं क्योंकि इस इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग जीरो से मेजर नहीं हुई, इसके लिए हम इसको क्या कहते हैं, जीरो एरर. जीरो एरर दो टाइप्स की होती है, पॉजिटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर. तो ये हमने देखा पॉजिटिव जीरो एरर. ओके, लिसन क्लास, जब एरर 1 सेंटीमीटर है मतलब पॉजिटिव में, तो उसकी करेक्शन ऑफ दिस एरर इज व्हाट, -1 सेंटीमीटर. रिमेंबर, करेक्शन is always be, remember I'll give you one formula, correction is always be minus of error, always. So error is your 1 centimeter, so correction becomes what, -1 centimeter. Okay, -1 centimeter correction हम लोग क्या करेंगे, measured length के साथ ऐड करवा दूंगा मैं. See here, measured length plus correction comes out to be, what is your measured length, 5 centimeter. What is the correction? The correction is -1, so -1 centimeter. So it comes out to be what, the 4 centimeter, which is your actual length. Okay, understood? तो ये सब था पॉजिटिव जीरो एरर के बारे में था. सो ये स्केल मुझे क्या दे रहा है, पॉजिटिव जीरो एरर दे रहा है. ओके, लेट्स टॉक अबाउट दिस स्केल नाउ. ओके, सो assume that this is the ideal scale, such type of scale never exist, but आप लोग को समझाने के लिए मैंने ये स्केल ड्रॉ किया है. ये स्केल कुछ इस तरीके से, जीरो यहाँ पर है और इसके पीछे भी कुछ रीडिंग्स चलती आ रही है. ओके, तो किसी स्टूडेंट ने रीडिंग 1 से मेज़र कर लिया यहाँ पर, तो ये स्केल यहाँ पर मुझे कितना सेंटीमीटर शो करेगा, इसकी एंड पॉइंट कितनी सेंटीमीटर शो करेगी, 3 सेंटीमीटर. तो इस केस में हमारा मेजर्ड लेंथ कितना आ रहा है हमें, द मेजर्ड लेंथ इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर. मेजर लेंथ वो वाली लेंथ होगी जहाँ पर पेंसिल का टॉप पार्ट हमें रीडिंग दिखाएगा. ओके, वी नो दैट द एक्चुअल लेंथ ऑफ दिस पेंसिल इज हाउ मच, द एक्चुअल लेंथ ऑफ दिस पेंसिल इज 4 सेंटीमीटर. सो व्हाट विल बी द एरर, वी नो दैट एरर इज ऑलवेज बी मेजर्ड लेंथ माइनस एक्चुअल लेंथ. So what is measured length? In this case the measured length is 3 centimeter. What is actual length? It is 4 centimeters. So the error is what, -1 centimeter. See, that's why it is said to be what, the negative error, क्योंकि आपका error नेगेटिव में आएगा. ओके, तो यहाँ पर ये मुझे क्या दे रहा है, नेगेटिव जीरो एरर. इसी को हम कहते हैं नेगेटिव जीरो एरर. क्लियर दिस मच? नाउ इसकी करेक्शन क्या होगी, एज आई टोल्ड यू, correction is minus times of error. So minus, what is your error, -1. So it comes out to be what, +1 centimeter. तो आपकी करेक्शन क्या होगी, +1 सेंटीमीटर. इस करेक्शन को आप मेजर लेंथ के साथ ऐड कर दो तो आपको एक्चुअल लेंथ मिल जाएगी. सी, सो एक्चुअल लेंथ क्या होगा आपका, सो एक्चुअल लेंथ इज इक्वल्स टू मेजर्ड लेंथ प्लस करेक्शन. सो व्हाट इज योर मेजर्ड लेंथ, सो द मेजर लेंथ हमने जो मेजर की थी वो कितनी थी, 3 सेंटीमीटर. करेक्शन कितने की है, 1 सेंटीमीटर. सो इट कम्स आउट टू बी 4 सेंटीमीटर. सी, अभी हम कैलकुलेट करेंगे जीरो एरर स्क्रू गेज में. ओके, सबसे पहले हमने अब जो थोड़ी देर पहले देखा था वो डायग्राम हम वापस से रिफ़र करेंगे, क्योंकि मुझे आपको एक चीज़ बतानी है यहाँ पर. जैसे कि इस केस में जब पेंसिल की लेंथ पेंसिल की एक साइड में 1 के साथ कोइंसाइड करवाता हूँ, जब उसकी दूसरा जो एंड है वो मुझे 5 सेंटीमीटर की रीडिंग बताता है. इस केस में हमने एरर कैलकुलेट किया था जो किस में आ रहा था, पॉजिटिव में. और सेकंड केस में जब मैं पेंसिल की एक साइड 0 के इस तरफ रखता हूँ और जो दूसरी साइड मुझे जो भी रीडिंग बताएगी उस रीडिंग में जो भी एरर होगा वो कौन सा होगा, -1 सेंटीमीटर. मतलब ये पॉजिटिव एरर था और ये नेगेटिव एरर. ओके, नाउ आई विल से दैट अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का लेंथ 0 के राइट हैंड साइड से मेज़र किया जाएगा तो उस एरर, वो कौन सी एरर होगी, वो पॉजिटिव एरर आएगी. ओके, और जिस ऑब्जेक्ट की लेंथ
अगर 0 के लेफ्ट साइड से मेज़र किया जाएगा तो उस ऑब्जेक्ट में कौन सा एरर होगा? नेगेटिव एरर होगा। तो यही चीज़ आपको समझनी है। अगर लेंथ को 0 के राइट हैंड साइड से मेज़र करोगे तो आपको जो एरर मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा। अगर लेंथ को आप 0 के लेफ्ट साइड से मेज़र करोगे तो आपको जो एरर मिलेगा वो नेगेटिव मिलेगा। ओके, तो अभी हम स्क्रू गेज के डायग्राम्स पे आ जाते हैं। ये मैंने कुछ डायग्राम्स बनाया है आपको समझाने के लिए, जिसकी फर्स्ट डायग्राम में जब मेरा एनविल और स्पिंडल दोनों एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है तो मुझे रीडिंग 0 शो कर रहा है, जो होना भी चाहिए। ओके, नाउ इफ यू विल सी सर्कुलर स्केल का 0, दिस इज द सर्कुलर स्केल 0। ओके, सर्कुलर स्केल का 0 मेन स्केल के 0 के साथ कोइंसाइड कर रहा है। इसका मतलब इस स्क्रू गेज में 0 एरर नहीं है। ओके, अगर सर्कुलर स्केल का 0 मेन स्केल के 0 के साथ कोइंसाइड करेगा तो उस स्केल में मेन स्केल के रेफरेंस लाइन के साथ कोइंसाइड करेगा तो उस स्केल में 0 एरर नहीं होगा। ओके, फिर फॉर एग्जांपल मैंने कोई ऑब्जेक्ट रख दी है स्पिंडल और एनविल के बीच में। ओके, और इस स्केल ने 2 रोटेशंस ख़त्म कर दी और मुझे अभी इस तरीके से रीडिंग दिखा रहा है, तो मैं उस ऑब्जेक्ट की रीडिंग पहले लिख लूँगा। ये उस ऑब्जेक्ट की एक्चुअल रीडिंग होगी क्योंकि इसमें एरर नहीं है, तो ये एक्चुअल रीडिंग होगी। ओके, इफ यू विल सी जो थिम्बल है, दिस इज अ थिम्बल, जो थिम्बल है वो एग्जैक्टली 2 के साथ कोइंसाइड कर रहा है। 2 थिम्बल की एंड पॉइंट पे आ गया, तो एक्चुअल रीडिंग कैलकुलेट करने का हमारे पास फॉर्मूला है ना, मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू सर्कुलर स्केल रीडिंग। So what is my main scale reading? Main scale reading is 2. Least count we know that 1 by 100. What is circular scale reading? If you will see, the circular scale reading comes out to be 0. So into 0. So you find out the actual reading is how much? 2 millimeter. Okay? तो ऑब्जेक्ट की एक्चुअल रीडिंग कितनी है? 2 मिलीमीटर। अभी हम देखेंगे अगर स्क्रू गेज में पॉजिटिव या 0 एरर है तो रीडिंग में कैसे फ्लक्चुएट होता है, रीडिंग की वैल्यूज़ कैसे चेंज होती है और उस रीडिंग को हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं। इफ़ यू विल सी दिस डायग्राम, आप देखोगे इस डायग्राम में सर्कुलर स्केल का 5th डिवीजन, सी दिस इज योर 5th डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल, उसके ऊपर 10th डिवीजन आ गई, 15th डिवीजन आ गई और 5th डिवीजन के नीचे 0th डिवीजन है। ओके, सो आई विल से द 5th डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल इज कोइंसाइडिंग विद द रेफरेंस लाइन। ओके, सर्कुलर स्केल का 5th डिवीजन रेफरेंस लाइन के साथ कोइंसाइड कर रहा है और आप देखोगे तो मेन स्केल का 0 लेफ्ट की तरफ आ गया। ओके, मतलब जो भी रीडिंग मेजर होगी वो राइट से मेजर होगी, 0 के राइट से मेजर होगी। जो रीडिंग 0 के राइट से मेजर होती है उस रीडिंग को हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव 0 एरर। तो यहाँ पर हमें जो एरर आएगा वो पॉजिटिव में होगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ओके, और वो एरर की डिस्टेंस यही होगी जो मैंने यहाँ पर एरो से बनाया और वो डिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे। ओके, अब क्योंकि मुझे पता है इस ऑब्जेक्ट का डायमीटर कितना है 2 मिलीमीटर, जो हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। आई एम नॉट टेकिंग दिस रीडिंग, मैंने कोई दूसरा ऑब्जेक्ट ले लिया है और उसकी डायमीटर कैलकुलेट करा तो उसकी रीडिंग मुझे कितनी आ रही है? 2 मिलीमीटर आ रही है। तो अभी यहाँ पर जब उसमें कुछ एरर है और जब आप उसकी 2 रोटेशंस ख़त्म करोगे, यू विल फाइंड आउट कि जो थिम्बल है वो 2 से आगे चला गया। इनिशियल केस में थिम्बल एग्जैक्टली 2 पे था जब कोई 0 एरर नहीं था, अब थिम्बल 2 से आगे चला गया। तो जब थिम्बल 2 से आगे चला गया तो थिम्बल की एंड और 2 के बीच में जो डिस्टेंस होगा वही आपका एरर होगा। ओके, अब इस इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग एरर कैलकुलेट कर, हम लोग उसकी मेजर्ड लेंथ कैलकुलेट करेंगे। सो विल कैलकुलेट द मेजर्ड रीडिंग। सो मेजर्ड रीडिंग, the formula will be the same, main scale reading plus least count into circular scale reading. So for this case what is your main scale reading? आप देख रहे हो थिम्बल के पहले कौन सी डिवीजन आई है? 2 आई है, तो I will say 2 is your main scale reading plus least count, we know that it is 1 by 100 is the least count. What is the circular scale reading? कौन सी डिवीजन कोइंसाइड होगी रेफरेंस लाइन के साथ? 5th डिवीजन, so I will multiply by 5. So 5 by 100 we know that it is how much? 2 plus 0.05,
So it comes out to be what? 2.05 millimeters. Okay, actual reading कितनी थी class? 2 millimeter. So what is your error? We know that error is what? Measured reading minus actual reading. So what is your measured reading? It is 2.05. What is actual reading? -2. So it comes out to be what? 0.05 millimeter का आपका error है. Clear? And this is what? Positive zero error, I will say. This is positive zero error क्योंकि आंसर आपका प्लस में. तो आपकी करेक्शन क्या होगी? As I told you, correction is what? Minus times of error. So correction becomes minus 0.05 millimeter. So now if you want to calculate the actual reading, so actual reading we know that measure reading plus correction. So I will write down measure reading plus correction. जो आपको कितना आ गया? मेजर रीडिंग कितना था आपका? 2.05 मिलीमीटर. व्हाट इज योर करेक्शन? 0.05 millimeter. So what is your final answer? 2.00 millimeter. See, we got the answer. Okay, so such type of error is known as what? The positive zero error in the screw gauge. अभी हम बात करेंगे नेगेटिव जीरो एरर की. ओके, इन द नेगेटिव एंड वन मोर थिंग, पॉजिटिव जीरो एरर आप डायरेक्ट देख के भी बता सकते हो. अगर जीरो नीचे आता है रेफरेंस लाइन के तो वो एरर क्या होगा? आपका पॉजिटिव जीरो एरर होगा. इस केस में देखो आपका जीरो ऊपर आ गया रेफरेंस लाइन के, तो इस केस का एरर जो होगा वो आपका क्या होगा? नेगेटिव जीरो एरर होगा. ओके, तो यहाँ पर जब देखोगे आपका थिम्बल आपका स्पिंडल और एनविल जब एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में होगा तो जो आपका जीरो रहेगा वो आपका अंदर चले जाएगा थिम्बल के और आपको दिखाई नहीं देगा. ओके, एज यू कैन सी ये वाला जो जीरो, एज यू कैन सी दिस इज अ लाइन, ये जीरो आपका थिम्बल के अंदर चला गया जो आपको बाहर से नहीं दिखाई देगा. ओके, थिम्बल की एंड और इस जीरो के बीच में जो एरर होगा वो आपका कौन सा होगा? नेगेटिव एरर. क्यों? क्योंकि आपकी लेंथ थिम्बल की एंड से मेजर होती है. तो थिम्बल की एंड, सी आप लेंथ कहाँ से मेजर करोगे? जीरो की लेफ्ट साइड से मेजर करोगे. अगर आपने लेंथ जीरो की लेफ्ट साइड से मेजर किया तो आपको कौन सी एरर आती है? नेगेटिव एरर. या इस केस में आप लेंथ कहाँ से मेजर कर रहे थे? जीरो की राइट साइड से मेजर कर रहे थे, तो इसके लिए आपका जो एरर आया वो कौन सा एरर आया? पॉजिटिव जीरो एरर. और इस केस में आप जो लेंथ मेजर करोगे वो जीरो की लेफ्ट साइड से मेजर करोगे. ओके, तो आपका जो एरर होगा वो कौन सा होगा? नेगेटिव एरर होगा. नाउ वी विल सी, जब हमने वही जो ऑब्जेक्ट्स में इनके बीच में रख रहा हूँ वही ऑब्जेक्ट मैंने स्क्रू गॉज में भी रख दिया और मैंने रोटेशंस घुमा दी जिसके बीच में, जिस वजह से ऑब्जेक्ट टाइटली क्लैम्प हो जाएगा. तो मुझे कुछ रीडिंग इस तरीके से आ रही है फॉर दिस टाइप ऑफ स्क्रू गेज. ओके, सो व्हेन यू सी द रीडिंग ऑफ इन दिस टाइप ऑफ स्क्रू गेज यू विल फाइंड आउट जो 2 मिलीमीटर वाला रीडिंग था मेन स्केल पे वो स्क्रू गॉज के अंदर चला गया. एज यू कैन सी इन दिस केस वो स्क्रू गेज के बाहर था और इस केस में एग्जैक्टली 2 स्क्रू गेज के ऊपर, थिम्बल के ऊपर ही था. ओके, इस केस में थिम्बल के बाहर है और इस केस में थिम्बल के अंदर आ गया. सो नाउ हाउ टू कैलकुलेट द एरर इन सच टाइप ऑफ केस एज वेल एज, हमें क्या कैलकुलेट करना है? एरर कैलकुलेट करना है इस केस में, और मुझे क्या कैलकुलेट करना है कि एरर की करेक्शन भी कैलकुलेट करेंगे हम, एरर को कैसे करेक्ट किया जाए. सो नाउ इन दिस केस अभी हम इसकी मेजर रीडिंग कैलकुलेट करेंगे. सो मेजर रीडिंग इज इक्वल्स टू मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू सर्कुलर स्केल रीडिंग. व्हाट इज मेन स्केल रीडिंग? सर्कुलर स्केल के पहले कौन सी डिवीजन क्रॉस हो चुकी है? 1. जो इसके सबसे नज़दीक है वो कौन सी वाली डिवीजन है? 1. सो आई विल राइट डाउन 1 प्लस लीस्ट काउंट कितनी है हमें पता है? 1/100. सर्कुलर स्केल रीडिंग कितनी है? 95th डिवीजन कोइंसाइड हो रहा है रेफरेंस लाइन के साथ, सो 95. सो व्हेन यू सॉल्व दिस यू विल गेट द आंसर एज 1.95 millimeter. सो व्हाट विल बी द एरर इन दिस केस? वी नो दैट एरर इज नथिंग बट व्हाट? मेजर्ड रीडिंग minus actual reading. So what is your measured reading? The measured reading comes out to be what? 1.95. What is actual reading? The actual reading is 2.00 millimeter.
both is in millimeter. So 1.95 minus 2.00 comes out to be what? 0.05 millimeter in minus sign. So this is said to be what? The negative zero error. इसको हम लोग क्या बोलेंगे? Negative zero error. Clear? So what will be the correction for this case? We know that correction is minus times of error. So error कितना आ रहा है हमें? minus 0.05. So correction will be what? Plus 0.05 millimeter. So now what will be the actual reading? So therefore actual reading is equals to measured reading plus correction. So what is your measured reading now? We know that 1.95 millimeter is your measured reading. What is your correction? 0.05 millimeter. So your answer comes out to be what? 2.00 millimeter. See, simple. We'll do one competitive question which came in AIEEE 2008. 2 full tons of circular scale of a screw gauge cover a distance of 1 millimeter on its main scale. Okay, means 2 tons will cover a distance of 1 millimeter. So 1 ton will cover x millimeter. Cross multiply unitary method, 2x is equals to 1. So x comes out to be what? 1 by 2 millimeter. That is how much? 0.5 millimeter. So 1 ton में कितना distance cover हुआ? 0.5 millimeter. This is pitch. Okay, तो मतलब ये pitch की information दी हुई है हमें. The total number of division on the circular scale is 50. What is number of division? It's 50. We know that least count is what? Pitch upon number of divisions. What is your pitch? 0.5. Number of divisions 50. That is how much? 0.05. Oh sorry, 0.01 millimeter. Okay, so that is your least count. Let's read the question further. Further, it is found that screw gauge has a zero error of minus 0.03. So zero error is of minus 0.03 millimeter. So what is your correction? So the correction comes out to be plus 0.03 millimeter. While measuring the diameter of a thin wire, a student notes the main scale reading of 3 millimeter. So we know that main scale reading comes out to be how much? 3 millimeter. And the number of circular division in the line with main scale is 35. So circular scale division is how much? 35. With main scale is 35. The diameter of the wire is, we want to find out the diameter. So first we'll measure length. पहले हम measure length measure कर लेंगे. So measure length will be main scale reading plus least count into circular scale reading. So what is your main scale reading? 3. Least count we know that 1 by 100, or you can write down 0.01 whatever. Circular scale reading 35. So it comes out to be what? 3.35 millimeter. We know that actual reading is nothing but what? Measured reading plus correction. So what is your measured reading? The measured reading comes out to be 3.35. So what is your correction? 0.03. So 0.03. So your final answer 3.38 millimeter. So according to that, option D is correct.